Assalamu alaikum. I'm Yasaid Akbar and you are watching the sixth part of the lecture 6 of web design in development course. In this lecture I'm going to show you how to apply CSS properties and styles on list. As you know that in HTML we have two types of list. These are ordered list and unordered list. Ordered lists are those lists in which different list items are listed with alphabetical or numerical order, for example A, B, C or 1, 2, 3. And in unordered list we list different element items using some icons or some dots, square type icons, etc. So how to style these lists and how to apply different CSS properties on the list. So let us start by creating a new HTML file. So this is lecture 6.6 .html. Okay, and let's edit with Notepad++. Let me create the basic HTML page, doc type HTML, and this is HTML start. This is the end of the HTML page. Inside the HTML page we have head and body section. Sorry, this is in closing tag of the body and this is starting tag of the body. Let me give this page a title, and the title will be CSS list properties. Okay, now let me create a list. As you know that in HTML we create lists using two types of tags. For unordered list we use the tag UL. Okay, this is start of the list and this is end of the list. Inside the list we have different list items represented using li. Okay, so let me take some li's, for example. Okay, this is my list. For example, these are subject names. For example, C++, this is calculus, this is Python, this is machine learning, and this is web design. Now let me check my file. So this is my file and this is output of the file. So as I have created unordered list, so that's why the unordered list is presented using some dots. ठीक है, 1 2 3 जो है वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के साथ आता है. फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर लिस्ट भी लेते हैं, and as you know that ordered list is represented using OL. So the second list is ordered list. इसको सेव करते हैं. So this is ordered list, this is unordered list. Okay, now what I want to change this style. जी जो हमारे पास डॉट डॉट आ रही है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ. So for this the property I will use is list style type. ठीक है, तो यहाँ inline CSS में इसको चेंज करते हैं. So style, ओके, और यहाँ मैं प्रॉपर्टी देता हूँ यूएल पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, और इसको मल्टीपल वैल्यूज हम दे सकते हैं. कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं? सर्कल फ़िलहाल जो हमारे पास है वो हमारे पास डॉट्स है. फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू देता हूँ सर्कल. सेव कर देते हैं, पेज को रिफ्रेश कर दें. सो देखिए हमारे पास ये सर्कल हो गया, चेंज हो गए. ठीक है, अगर सर्कल के बजाय ये मैं डेस्क कर दूँ तो ये स्क्वायर टाइप डेस्क आएंगे. ठीक है, तो ये अच्छा ये हमारे पास डेस्क है, और अगर स्क्वायर कर दूँ स्क्वायर तो ये हमारे पास स्क्वायर टाइप्स डेस्क आ गए. ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ इमेज आ जाए, मीन्स आपकी अपनी यूज़र डिफाइन इमेज हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा इमेज देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरे पास ये आइकन आ रहा है, ये वर्ल्ड का आइकन, मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का आइकन आ जाए. तो इसको इस तरह करते हैं, एक स्नैपिंग टूल से इसको स्नैप करते हैं. स्नैपिंग टूल, न्यू, इस छोटे से इमेज को मैं यहाँ इस तरह इसका एक छोटा सा स्नैप लेता हूँ
अच्छा, मेरे ख्याल में ये बहुत छोटा है तो इसलिए स्लिप नहीं ले रहा। ओके, और इसको सेव करते हैं, सेव एज, इसको मैं आइकन नेम देता हूँ, चले आइकन, और इसको और भी छोटा क्रॉप करते हैं इसको। ओके, इट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, इस इमेज को मैं यहाँ से कट करता हूँ, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ले जाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ icon डॉट png एंड व्हाट आई वांट टू स्टाइल द लिस्ट विद दिस आइकन, ठीक है। तो यहाँ स्टाइल डैश टाइप के बजाय मैं यहाँ प्रॉपर्टी दूंगा स्टाइल डैश इमेज, ठीक है। तो स्टाइल डैश इमेज, और यहाँ मैं URL के थ्रू इसको अपना इमेज बताऊंगा कि कौन सा इमेज आपने यहाँ पर डिस्प्ले करना है, एंड दैट इज़ icon डॉट png, ठीक है। इमेज का नेम icon डॉट png है, यस, ठीक है। अपने इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास वो इमेजेस इसके साथ आ गई, ठीक है। उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है इमेज का साइज़, तो इसलिए ये थोड़ी सी इस तरह ठीक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरह स्टाइल कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं चाहूँ, चले ये तो यूएल हो गया, ओएल की तरफ आते हैं। ओएल में हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ABC के फॉर्म में डिस्प्ले कर दें, तो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, ठीक है। और इसको आप वैल्यू देंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा होता है, चले देख लेते हैं, मैं तो भूल गया ये, सॉरी, यहाँ पर हमने भी हाँ अपर केस अल्फ़ा या लोअर केस अल्फ़ा, तो आपने इसकी वैल्यू ये देनी है, अपर अल्फ़ा, ठीक है। सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे तो देखिए अपर केस के लेटर्स आ गए। अगर आप लोअर चाहते हैं तो लोअर वैल्यू इसको दे दें, तो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स आएंगे। इसी तरह अगर रोमन आपको चाहिए तो देखिए अपर रोमन, लोअर रोमन, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर रोमन, सेव कर दे पेज को, तो लोअर रोमन 1 2 3 आ गई। इसके साथ साथ एक बैकग्राउंड पोजीशन की सॉरी लिस्ट पोजीशन की एक प्रॉपर्टी है। पोजीशन का क्या मतलब है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो 1 2 3 या ये जो आइकन आ रही है, ये एक्चुअली LI का जो हमारे पास कंटेंट है उससे बाहर आ रही है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये इनसाइड आ जाए, तो इसको भी हम यहाँ ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं। द प्रॉपर्टी इज़ लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। सो लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन, और इसको अगर मैं इनसाइड कर दूँ, सॉरी इनसाइड, ठीक है। तो देखिए अभी ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ से इस तरह जस्टिफाई आ रहा है, और जब पर ये आउटसाइड होता है तो हमारा टेक्स्ट जस्टिफाई होता है, लेकिन ये नंबरिंग या ये आइकन जस्टिफाई नहीं होते। तो यहाँ से हम इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं चाहूँ कि मेरा ये लिस्ट जो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ कोई आइकन वगैरह ना हो और ये हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे प्रॉपर्टी ख़त्म करता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो सॉरी मैंने सेव नहीं किया, डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो इसी तरह होगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये ख़त्म हो जाए, ये जो डॉट्स आ रही है या डिस्क आ रही है ये ख़त्म हो जाए, तो इसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, और इसकी वैल्यू दूंगा नन, ठीक है। तो ये स्टाइल इससे ख़त्म हो जाएगा, लिस्ट स्टाइल ख़त्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट मैं करूँगा, क्या करूँगा, नेक्स्ट आई वांट दीज आइटम्स टू बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो यहाँ मैं हर एक LI को मैं हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा कि UL के अंदर जितनी भी LIs है उन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। ये प्रॉपर्टी क्या, डिस्प्ले हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। और इसको मैं वैल्यू देता हूँ इनलाइन, बिकॉज दिस आर नाउ ब्लॉक टेक्स्ट, और मैं इसको इनलाइन जो है डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो जब हम इनलाइन करेंगे तो देखिए ये सी कैलकुलस पाइथन ये सारे लिस्ट आइटम है, लेकिन अभी इनलाइन शो हो रही है। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स लिस्ट के ऊपर, ठीक है। स्पेलिंग गलत था, ठीक है। अच्छा, एक है लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल में ये तीनों पोजीशन, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम कंबाइन करके यहाँ पर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट स्टाइल हम मींस, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
लिस्ट डैश स्टाइल जस्ट लिख दूँ तो यहाँ मैं 3 पैरामीटर इसको या 3 टाइप ऑफ स्टाइल यहाँ दूंगा। फर्स्ट ये टाइप, सेकंड कि आउटसाइड होगा इनसाइड होगा, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज। अगर आपने इमेज देना है तो आप इसको इमेज दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोअर रोमन आउटसाइड, ठीक है, और मैंने कोई इमेज नहीं देना है तो बस ये दो काफ़ी है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी सिर्फ अप्लाई होगी, तो देखिए वही एक प्रॉपर्टी अप्लाई है, ठीक। यहाँ ओएल, देखिए वही एक प्रॉपर्टी सिर्फ अप्लाई है। तो इसका मतलब ये है लेस स्टाइल जो है, ये लेस स्टाइल की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इन तीनों को कंबाइन करती है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने सिर्फ एक लाइन में लिखना है तो आप जस्ट लेस स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी अप्लाई स्टाइल्स टू लिस्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।